चलो जी नोट करो ओके 28 नंबर कॉपी देते मिरर फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਪਤਾ ਬਤਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ expression for the mirror formula expression for the mirror formula expression for the mirror formula is और ये दाई साढ़े बोलो 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v वेयर पाने नोट कर लो भाई ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वास्ते अगर तो फाइनल दे विच न्यूमेरिकल आओ कोई जरूर कंफर्म है कीजिए फाइनल पेपर दे विच न्यूमेरिकल जरूर आऊगा नोट कर लो जी एप्लीकेशन की f की है जी f इज इक्वल टू फोकल लेंथ u की है जी डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट और v की है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ये जो डायग्राम पार्टी डायग्राम कितना बनूगी चलो मैं लेट कर लेते हैं मैं कैलकुलेटर तो ले लिया आउटर साइड दी कॉपर पॉलिश है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ फोकस पॉइंट को लेके कोर पॉइंट तक का डिस्टेंस है ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ A B ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾਓ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उस तो बाद गल कर रहे डिस्टेंस ऑफ इमेज मान लो तो इमेज इतने बन गई है इस जगह से इतने इमेज बन गई है ये बन गई ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਡੈਸ਼ b ਡੈਸ਼ ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ डिस्टेंस ऑफ इमेज ਬਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ अगर न्यूमेरिकल आ जाता है और ये नोट करोगे अगर P पॉइंट को लेके F तक का डिस्टेंस है वो साडा है फोकल लेंथ अगर P पॉइंट को लेके साडा ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज u और साडे कोर पॉइंट को लेके साडे इमेज तक का डिस्टेंस है दैट इज v ठीक है जी और ये न्यूमेरिकल च यूज होना जे जेड़ा हुंदा ताड़ा टेस्ट लेना तो न्यूमेरिकल आऊगा ठीक है चेता रख लो न्यूमेरिकल में कहूंगा सॉल्व नहीं करना और मैं भी खुद सॉल्व करके भेजूंगा तुम खुद सॉल्व करोगे ठीक है जी चलो नेक्स्ट चलते हैं ये वाला फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी प्लीज चंगी तरह ये भी एप्लीकेशन भी तो होनी चाहिए और भाई ये मिरर फार्मूला ना कि लेंथ फार्मूला फर्क होता है ठीक है थोड़ा ज्यादा -% ज्यादा नहीं चलो जी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट दे विच हैगा जी लीनियर मैग्नीफिकेशन एक्सप्रेशन ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ चलो जी एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन
एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन। भाई कोई बच्चा को मैग्नीफिकेशन दस सकता है की होती है कल को दसया कोई जगह शीशे होते हैं ਤੁਹਾਡੀ फोटो च मोटी दिखती है या पतली दिखती है जिवें ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਹੁੰਦੇ ਐਨਕ की करती है जी कई आदमियों की है जी दूर की जगह घट होती है नेड़े की घट होती है जिन्होंने आप फोटोट्रोपिया या फोटोट्रोपिया कह देते हैं। सो वो की होंदा जी जिहड़ी गूगल है वो ही करती है चीज़ को या नेड़े करके विखा देती है या वड्डा करके विखा देती है। ਇਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਚ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਨੈਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ अपने वाल का भी 10 गुना ही होगा अपने वाल का जो कह सकते ना अपने सिर का वाल कह सकते थे उदू भी 100 कर दोगे कि नैनोमीटर होता साड़ी नेक लाइन देख नहीं सकते वह साइज एडा बड़ा कह सकते हैं 1000 गुना 1000x बोलते थे 1000x मीनस 1000 टाइम वह साइज इंक्रीज हो जाता जो नैनो पार्टिकल है मेरे को फोटो पहली भी जी मैथ करके की है ना मैंने उसकी जरूरत पैंती है बड़ी क्योंकि मैं नेक डायग्राम नहीं देख सकता पर जो मतलब जब फोटो में ना एडा पीस होता है एडा पीस वो इतने के ज़्यादा नैनो पार्टिकल है कि आपने कमरे जिन्ने कह सकते कमरे एडा सही हो जाता था वो मशीन और वो बोलते स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मीनस जो नैनो पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज होता और उसका साइज जो मैगनीफाई कर देते हैं मैगनीफाई इंक्रीज कर देते हैं साइज बड़ा कर देते हैं। सो जिवें फॉर एग्जाम्पल चश्मा बेस्ट एग्जाम्पल है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਗਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਪੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਪੈਕਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ 0.29 ਹਾਂਜੀ 0.0 ਜਿਹੜਾ ਵਾ 20 ਹਾਂ 29 ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। in this process to increase the size of image size increase the image size of in this process to increase the image size of small object ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਮਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀਰੋ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਉਂਗਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ divided by size of ऑब्जेक्ट ठीक है जी। ये फॉर्मूला इधर भी हो सकता है और बाकी देखो नाली है ये फॉर्मूला इधर भी हो सकता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कई बुक्स में इधर देता था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है जी। सो अगे देखो ये की करना मैं ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ m ਦਾ ਇਹ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ h ਡੈਸ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ h ਡੈਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ h ਹੈ इसे मैं कैलकुलेट बता रहा हूं देखो
और ये इतना दिए जी m is equal to minus b on q कुछ माइनस साइन क्यों आया है इधर क्या वैल्यू है इधर तो दस लगा के माइनस साइन क्यों आया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ तो सेम ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਪਰ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ A B ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਡ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗੱਲ अगर फ्रंट साइड में साडा ऑब्जेक्ट प्लेस है तो क्या होगा साइन कड़ा होगा पॉजिटिव कि नेगेटिव कारण मैं कहता हूं साइन नेगेटिव है जी नेगेटिव होगा सो दैट ये क्यों होगी दैट यू होगी यू साडा की होता जी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो यू नाल नोट करते हैं तो यू साडा क्या होगा नेगेटिव अगर दैट इमेज इधर बनती है अगर इमेज इधर बनती है मान लो दैट इमेज बन गई प्रॉपर बना देना ये बन गई दैट बी डैश ये दैट इमेज बन गई सो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ये दैट बी है पॉजिटिव और नेगेटिव होगी हां ये साइड है ये होगी जी अगर ये कोई इधर आ जाए फिर मान लो दैट इमेज बन गई है फिर नेगेटिव ये भी क्या होगी बी भी क्या होगी नेगेटिव आ जाएगी इसका क्या नेगेटिव साइन आता है ठीक है जी इसका क्या नेगेटिव साइन आता है सो उस तो बाद देखो जी हाइट की गल होती है हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितनी होती है ये भी समझ लो भाई इनका सेव कर लो भाई अगर ठीक नहीं करनी है सीधी तो गलत है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 00 ਆਏ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗਾਂਵ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ मैं वेरिएबल खुद वेरिएबल खोल रहा हूँ और खुद पढ़ा लिखे जाऊंगा मेरा वो लंबे में ठीक है जी तो इस करके प्लीज थोड़ा जरा समझ लो आप देखो जी एक ही दिया हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया देखो जी पेपर में नौ जी डबल डाउन की बड़ी आ बड़ी की और फिर के पेपर ड्रा कर रहे हैं आउटर साइड ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਾਪਰ ਪॉइंट ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ है ये ताड़ी प्रिंसिपल एक्शन लाइन है देखो ये ताड़ा ऑब्जेक्ट इधर प्लेस है जेडी प्रिंसिपल एक्शन लाइन है इतना कर ए बी ये ताड़ा ऑब्जेक्ट है सो देखो जी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा ये वाला डिस्टेंस ये ताड़ा h है जेड़ा जी नीचे जा h उस तो बाद कर लो जी मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है जी इमेज ऐसे बन गई मान लो ऐसे बन गई ए भी बन गई मान लो इधर बी डैश आ गया ए डैश आ गया ये भी बन गई तो क्वेश्चन का हाइट ऑफ इमेज कितनी है तो ये हाइट ऑफ इमेज तुम मेजर कर देखो इसका कर मेजर कर लेना कितनी आ गई है मान लो डी एच डैश सो एच डैश इतना करते हैं और एम दा मैग्नीफिकेशन है जेडी मैं पहले दस चुका हूं ये वाली ये मैं एम ना यूज करती है सो प्लीज ये चीज का पेपर नहीं करनी होगी न्यूमेरिकल नहीं करनी होगी तुम पेपर से करोगे कैलकुलेट करोगे एच आई है एच की वैल्यू से लिखनी होगी एच डैश की भी आएगी और लिखनी होगी पेपर में ये तक करके जितना मैं लिखी है ना वो बार नहीं करनी सो देखो जी ये ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ और एक ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਦੇ प्लीज कॉपी दे नोट डाउन कर लो बुक है ये बुक दिया ले लो जितना तो मैं करा दे तो मर्जी कर लो ठीक है बस काम लो इतनी चीज है और मैं कॉपियां बनने चाहिए हो तो जो कोई जरा नोट नहीं करता मैं करते मैं जी चलो ये नेक्स्ट इधर एक दो कंडीशन दे रही है इसे नाली नोट कर देना मैं नंबर 3 पा लो 30 नंबर से ले लो कंडीशन फॉर मैग्नीफिकेशन साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन साइन की गल होनी है
ਤੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ m ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਫ m ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ m ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ बड़ा करवा भाई अपनी डायग्राम नोट बना लेना, ऊपर की डायग्राम नीचे बैठ जाए तो सदी बार-बार ही क्या करता है, सारे मुझसे भी डायग्राम पॉसिबल नहीं है, वो जो चीजें होता है सब नहीं है। देखो ये कैमरा होता है वो जब सेटिंग में पॉलिश करती है, इथे एक फोकस बना लो, इथे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना लो, मान लो कि ਤੁਹਾਡੀ कोई इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी है। सो देखो जी ऑब्जेक्ट ए बी है ते एदी ऑब्जेक्ट ए बी है, एदी इमेज बनती पई है इधर तक, कह सकते हैं बिहाइंड साइड ते साडे मिरर दे बिहाइंड साइड ते इमेज बनती पई है, और केड़ी कंडीशन बनती पई है डायरेक्ट कंडीशन दे विच इदां कर इथे बनती पई है ए डैश बी डैश। सो भाई ये कंडीशन दे विच m ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ m ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਔਰ ਇਮੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਮੇਜ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਿਰਰ, ਔਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗੀ। और देखो ये इसे कड़ी इमेज है डायरेक्ट बनती है, डायरेक्ट भी खड़ी, ठीक है जी। इसे इमेज जड़ी डायरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। चलो जी सेकंड कंडीशन नोट करो, ये ए कंडीशन है, बी कंडीशन नोट करो, इफ m इज नेगेटिव, हुन भी तुम समझोगे ये की बनूगा, एक पढ़ती सोखे देख रहा समझा पूरी बना के समझो, ऐसा समझा था ये पूरी डायग्राम नहीं है। देखो जी हुन मैं कंडीशन दई है कि m साडी नेगेटिव है, m नेगेटिव किਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, एक मिनट जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨੂੰ ए डैश बी डैश, ठीक है जी। अगर साडा m जेड़ा नेगेटिव आ गया मींस जेड़े साइड साडा ऑब्जेक्ट है उस साइड ही साडी इमेज बनती है, कह सकते हैं इमेज ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड ऑन फ्रंट साइड ऑफ मिरर और इमेज आर प्लेस्ड आल्सो फ्रंट साइड ऑफ मिरर, ठीक है जी। बट इमेज जेड़ी इन्वर्टेड है, उल्टी है, ये वाली साडी इन्वर्टेड है। तो इस केस में जो कोई तो डायरेक्ट लेना नेगेटिव हो, और एक यदि इमेज पता कितना बनती नहीं है, मुझे शादी हो रही है फिर बता देना, ये पूरी इमेज बनानी है डबल वाले थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फोकस है। सो देखो जी ये कितना करके एक लाइन जाऊंगी, एक लाइट लाइट इंसिडेंट करूंगी और फोकस पूरा जगह कितना लॉस होगा, एक लाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा जगह दे दूंगी, और सारे ये वाला जरा मिरर है मैं टच करूंगी, और जेड़ा पाथ जेड़े पाथ इंसिडेंट है वो पाथ देंगे है की पाथ जेड़ा वो सेम पाथ रिट्रेस कर दे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा जगह ਜਾਂਦੀ है, जेड़े पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ इंसिडेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ रिफ्लेक्ट ਹੁੰਦੀ है। तो ਜਿੱਥੇ दोनों इंटरसेक्ट ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ a डैश b डैश, और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ m ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ऑब्जेक्ट इज placed front side of the camera or image is also placed front side of the mirror और image is inverted, ठीक है, उल्टी बनती है। सो ये दो कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चलो जी इनू कहना रेस करिए,
बाकी भी मैं तो पेपर जो लिखूंगा पेपर की कर दें इनू कोई कोई रेज कर दो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है डिस्कवर लगे ले लो तुम्हारी मर्जी है जितना कर मिला ले लो तो बुक तो कर लो नहीं कोई कंपल्शन नहीं कि मैं कॉपी बन के डेली करवा दूं कभी कभी मैडम ने समझाया पहले मैंने ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ मार दिया टेंथ ਦਾ बच्चे ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ पर मैं थोड़ी मैडम के रिक्वेस्ट की कि कोई नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ अगर मैडम ने मना कर दिया तब तो लगा आज अपनी घर पर आज पर खत्म हो जाना उसके बाद फिर इतने उनका काम है बोर्ड करेगा अच्छा ये नहीं करना मैडम ने मना करता है ਤੁਹਾਡਾ मना किया बोर्डिंग क्लास ने तो चलो कोई नहीं पर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ सर मैं तो दो दिन स्कूल बुलाया करना ਤੁਹਾਡਾ 100 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਦਾ ਬਾਈ ਘੰਟਾ नहीं होगा मैथमेटिक्स वाला चैप्टर भाई था और केमिस्ट्री का दो भाई और केमिस्ट्री क्यों करेगा एक कदर नहीं जाएगा आगे नोट करो पोजीशन ऑफ इमेज फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ए कंपेयर करो नोट कर लो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भाई लिख लो वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन कंकेट बना देखो जी कंकेट मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਇਮੇਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇਮੇਜ ਇਨ ਕੰਕੇਵ ਮਿਰਰ भैया तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन देता हूं ये एनसीईआरटी बुक से मतलब टेबल बने हुए हैं चलो सीख लो वो जो पहले टेबल बने होते पता नहीं डायग्राम देती है बना देती है पर मैं डायग्राम बना करूंगा देखो चलो जी इदा करके ना टेबल को दे दो नाल सीरियल नंबर नाल है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसके बाद कॉलम बना लो पोजीशन ऑफ इमेज सही है जाना जा सकते हैं पैदा करने की जरूरत नहीं है पोजीशन ऑफ इमेज सही है जाना जा सकता है प्लीज नेचर ऑफ इमेज कोई कंपल्शन नहीं करती थी नेचर ऑफ इमेज यूजर्स मेरा प्रूफ है कवर मेरा कैमरा ठीक है जी ये ताड़ी टेंशन है नहीं करना जड़ा शुरू तो पढ़ता है तो जरूर जे तो सब हाँ जी होनी बनी है मैं कल बैठने मना किया पर मैं कहूँगा वास्ते मैं मना करता मैडम ने बोर्ड की क्लास जान दो अच्छा बैकअप मोड रखना प्लस 2 तक और वीडियो नहीं सेंड होनी बस एक आ 2-3 वीडियो और सेंड होनी है उस तो बाद बंद कर देना नेक्स्ट चैप्टर जिधर मैं केमिस्ट्री शुरू करती खत्म सारा इतने होंगे बच्चे को जिस बच्चे का नहीं नहीं अगर सही है बाकी इतने नहीं है कि स्कूल है बंद करा ताड़े को ना 10 गुना उनका काम होना 10 गुना इन्ना कुछ दे चलूगा भी दिमाग को मजा बच्चे समझे नहीं कि करके ये समझ नहीं जाते यार तो ये तो बड़ा बढ़िया रिस्पॉन्स बना पेपर में चलो जी नंबर 1 मान लो और ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की है साडी वो नोट करो ये जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर
in between position of object are in between the pole point of the P in the rectangular and the principal focus F डायग्राम कैसे क्रिएट की थी इधर जाती है नीचे का तो एक मिनट तो इसे डायग्राम में नीचे बना देना जी तो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर कैमरा आ गया आउटर साइड पॉलिश है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है ये साडा पोल पॉइंट है P इथे साडा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया इथे साडा प्रिंसिपल फोकस F आ गया सो इसको जो की लिखा हुआ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट U की गल की है U की किथे है कि बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ये है पोल ए है इथे साडा ऑब्जेक्ट होगा इस जगह पे इथे साडा की होगा जी ऑब्जेक्ट सो ये तो यू ना लेकिन सॉरी ऑब्जेक्ट ही लिख देते हैं इमेज अपनी कितने पढ़ती है यदि इमेज की गल करती है कहीं सो इमेज वास्ते देखो कि नोट करो बिहाइंड द मिरर इमेज आर प्लेस्ड ऑन बिहाइंड द मिरर देखो ये कैमरा है ये फ्रंट साइड है ये वाली ये बैक साइड है सो इमेज कितने बन गई जी दसो जी ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਰੈਕਟ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਰਟੀਕਲ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਪਾਈਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ रेक्ट है वर्चुअल है और एक चीज और नहीं अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट घट है ना ऑब्जेक्ट का साइज घट है इसे साइज ऑफ इमेज भी इंक्रीज हो जाएगा अगर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज घट है ना इसे साइज ऑफ इमेज इंक्रीज हो जाएगा मैग्नीफाइड कह सकते हैं ना लिख लो मैग्नीफाइड साइज ना लिखो मैग्नीफाइड जी मैग्नीफिकेशन की दसिया जी ऑब्जेक्ट इमेज का साइज इंक्रीज हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट साइज घट है स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो इमेज साइज ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਮੇਜ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੂਗੀ ਔਰ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ h ਡੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੌਰੀ h ਹੈ ਇੱਥੇ h ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ सो अगर ये a है b है ये a डैश b डैश ठीक है जी उस तो बाद इसे लिखी दी होती है ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿਰਰ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ और एक तो यूज होती है यूज देख लो यूज नोट कर लो सो द यूज है जी शेविंग मिरर शेविंग मिरर और इधर आ गया जी डेंटिस्ट मिरर ठीक है जी शेविंग ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਸਲੂਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀੜਾ ਕੂੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ तो दूसरा नंबर जो है शुरू हो ही जाना अपना है दो नंबर पा लो नेक्स्ट देखो जी ये भी कंटेनर के अंदर ही है ये देखो जी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस पोजीशन हम जान लो कि
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੱਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ